کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کچھ بھولنا چاہتے ہیں مگر بھول نہیں پاتے؟ دل کسی تکلیف، غصے یا خوف سے بھرا ہے اور وہ بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ اندر کچھ ایسا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی میں سب سے بڑی دشمن کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ وہ دشمن ہے ہماری دبی ہوئی جذباتی توانائی، سپریسڈ ایموشنز۔ اور یہی کتاب لیٹنگ گو ہمیں سکھاتی ہے کہ چھوڑ دینا، سرنڈر کرنا کمزوری نہیں ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی روحانی طاقت ہے۔ یہ کتاب صرف جذبات کو سمجھنے کی گائیڈ نہیں، یہ ایک ایسا اندرونی سفر ہے جہاں ہم خوف، غصے، غم، انا اور ماضی کے زخموں کو چھوڑنا سیکھتے ہیں اور ان کی جگہ حاصل کرتے ہیں سکون، آزادی اور بے حد محبت۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ کیسے دبا ہوا غصہ، دکھ، حسد، احساس کمتری ہماری جسمانی اور روحانی صحت پر اثر ڈالتا ہے، کیسے ہم بغیر جدوجہد صرف قبول اور چھوڑنے کے ذریعے جذبات سے نجات پا سکتے ہیں، کیسی ہماری اصل فطرت، امن، محبت، طاقت اور آزادی ہماری ہی اندر موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک بوجھ سے آزاد زندگی، گہرے سکون کا تجربہ اور ایک ایسی روحانی ترقی جو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دل میں اتر جائے، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ لیٹنگ گو صرف ایک کتاب نہیں، یہ روح کی شفا کا نسخہ ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ آر ہاکنس کی کتاب لیٹنگ گو کا سب سے اہم تصور ہے ایکسپریسنگ، سرپریسنگ اینڈ لیٹنگ گو، یعنی دبانا، ظاہر کرنا اور چھوڑ دینا۔ یہ 3 طریقے ہیں جن سے ہم عام طور پر اپنے جذبات سے نمٹتے ہیں۔ آئیے ان کو تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ سپریسنگ، جذبات کو دبانا۔ جب ہم کسی منفی سوچ، منفی جذبے جیسے غصے، خوف، دکھ یا حسد کو محسوس کرتے ہیں مگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور اندر ہی دبا لیتے ہیں، اور ہم اظہار کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اندر سے ہم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور، کسی نے آپ کی بے عزتی کی مگر آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف مسکرا دیے مگر دل میں آپ غصے یا شرمندگی کو دبا رہے ہیں۔ نتیجہ جسمانی بیماری، سر درد، معدے کے مسائل، دل کی دھڑکن تیز، جذباتی تھکن، اندرونی بے سکون، جذبات کا انبار جو بعد میں پھٹ سکتا ہے۔ That which is suppressed is stored in the body. Expressing، جذبات کا اظہار کرنا۔ جب ہم اپنے جذبات جیسے غصہ، ناراضگی یا تکلیف کو شدت سے دوسروں پر نکالتے ہیں، چیخ کر، جھگڑ کر یا شکایتیں کر کے۔ مثال کے طور، کسی کی بات بری لگی اور فوراً چیخنا شروع کر دیا، الزامات لگائے یا غصہ نکال دیا۔ نتیجہ وقتی سکون مگر دیر پا نقصان، رشتوں میں درار، گناہ یا پچھتاؤ، جذبات کی گرفت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ Expressing emotions is like putting fire on fire. It only increases the flame. Letting go، چھوڑ دینا، سپرد کرنا، یہ ایک آگاہ اور پرامن عمل ہے۔ اس میں ہم جذبات کو محسوس کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ لڑتے نہیں، ان سے بھاگتے نہیں اور کسی پر نکالتے نہیں۔ ہم انہیں قبول کرتے ہیں اور پھر خاموشی سے جانے دیتے ہیں بغیر کسی رد عمل کے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیٹنگ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں بند کریں، جذبے کو محسوس کریں، کوئی مزاحمت نہ کریں، نہ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، بس سانس لیں اور خود سے کہیں میں اسے چھوڑتا ہوں، یہ اب میرا نہیں ہے۔ مثال، کسی نے کچھ برا کہا، دل دکھا، آپ نے خود سے کہا یہ اس کا نظریہ ہے، میں اس کو دل پر نہیں لوں گا۔ آپ نے اس دکھ کو محسوس کیا اور پھر اسے جانے دیا۔ نتیجہ ذہنی سکون، جسمانی صحت بہتر، روحانی طاقت میں اضافہ، خود اعتمادی اور اندرونی آزادی۔ Letting go is like breathing out. You simply stop holding on. Suppressing نقصان دہ ہوتا ہے، ایکسپریسنگ وقتی راحت مگر تباہ کن ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھو، لیٹنگ گو، چھوڑنا، مکمل آزادی اور شفا ہے۔ یہی ڈاکٹر ہاکنس کا پیغام ہے۔ ہر جذبے کو بدلنے کی کوشش مت کرو، بس اس سے چپکے رہنا چھوڑ دو۔ لیسن 2، سرنڈر ٹیکنیک۔ سرنڈر کا مطلب ہے کسی جذبے، سوچ یا کیفیت کے ساتھ لڑنے کی بجائے اسے قبول کرنا اور جانے دینا۔ یہ ٹیکنیک سکھاتی ہے کہ ہم اپنے منفی جذبات جیسے خوف، غصہ، دکھ، حسد کو دبانے یا نکالنے کی بجائے بس مکمل طور پر محسوس کریں اور پھر چھوڑ دیں۔ Letting go means to surrender all resistance to the feeling. چھوڑ دینا یعنی اس احساس کی مزاحمت کو مکمل طور پر ترک کرنا ہے۔ سرنڈر ٹیکنیک اسٹیپ 1، جذبے کو پہچانیے۔ سب سے پہلے غور کیجئے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ کیا آپ خوف زدہ ہیں؟
क्या दिल में हसद या उदासी है? उसे दबाइए मत, सिर्फ पहचानिए। स्टेप 2, जज्बे को दिल से कबूल करें। उस जज्बे से न लड़ें, न उस पर शर्मिंदा हों, न उसे ठीक करने की कोशिश करें। बस खामोशी से उसे महसूस करें जैसे कोई मेहमान आपके घर आया हो, आप सिर्फ उसकी मौजूदगी को मान रहे हैं। स्टेप 3, जज्बे को बगैर लेबल के महसूस करें। जज्बे को बुरा या अच्छा ना कहें, सिर्फ दिल और जिस्म में जो कुछ हो रहा है उसे गौर से देखें, सांस लें और उसे गुजरने दें। फील द फीलिंग फुली, डोंट रेजिस्ट इट, डोंट जज इट, डोंट एनालाइज इट। एहसास को मुकम्मल तौर पर महसूस करो, उसकी मज़ामत ना करो, फैसला ना करो, तजदिया ना करो। स्टेप 4, लेट इट गो, कहकर छोड़ दें। जब आपने जज्बे को बगैर मज़ामत के महसूस कर लिया तो खामोशी से दिल में कहें, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ये अब मेरा नहीं। ये कहना एक अलामती अमल है जो दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब हमें इस जज्बे से चिमटे रहने की ज़रूरत नहीं। ये अमल बार बार करना होगा। हो सकता है एक ही जज्बा बार बार वापस आए, जैसे कोई पुराना दुख या खौफ, लेकिन हर बार उसे महसूस करो, कबूल करो और छोड़ दो। वक्त के साथ वो जज्बा कमजोर होता जाएगा और फिर गायब हो जाएगा। सरेंडर टेक्निक के क्या फायदे हैं? ज़हनी सुकून, जिस्मानी सेहत में बेहतरी, खौफ, गुस्सा, हसद से आज़ादी, गहरी नींद और तवज्जो, रूहानी तरक्की और खुशशनासी, जिंदगी में बहाव और बरकत। मिसाल के तौर, आपको जॉब की इंटरव्यू से पहले बहुत खौफ आ रहा है। सबसे पहले खौफ को नज़रअंदाज करना, सप्रेस करना, खुद से बहस करना, मुझे डर नहीं होना चाहिए, या चीखना, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। जबकि सरेंडर टेक्निक क्या है? आप खामोशी से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, दिल की धड़कन, पसीना, घबराहट सबको महसूस करते हैं, बस सांस लेते हैं बगैर रद्द अमल। दिल में कहते हैं मैं इसे छोड़ रहा हूँ, और कुछ देर बाद वो खौफ कम होने लगता है। दोस्तों याद रखें, व्हाट यू लेट गो ऑफ नो लॉन्गर कंट्रोल्स यू। जिसे तुम छोड़ देते हो वो तुम पर हुकूमत करना छोड़ देता है। यू डोंट हैव टू फाइट द फीलिंग, जस्ट स्टॉप फीलिंग इट। तुम्हें जज्बे से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे फीलिंग करना बंद कर दो। सरेंडर टेक्निक एक ताकतवर, सादा और रूहानी रास्ता है जिसे दबाना नहीं, लड़ना नहीं, बस महसूस करो, तस्लीम करो और छोड़ दो। यही हकीकी लेटिंग गो है। लेसन 4, इमोशंस एज एनर्जी, यानी जज्बात तवानाई एनर्जी की सूरत होती है। ये एक गहरा मगर आसान असूल है। हमारी हर फिक्र, जज्बा, एहसास दरअसल वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की एक शक्ल है जो या तो तुम्हें ऊपर ले जाती है या नीचे गिराती है। हर जज्बा जैसे गुस्सा, मोहब्बत, खौफ या खुशी, ये एक तवानाई की लहर है। ये तवानाई या तो तुम्हें ताकतवर बनाती है जैसे मोहब्बत, अमन, खुशी, या हमें कमजोर करती है जैसे खौफ, शर्मिंदगी, नफरत। हाई एनर्जी इमोशंस हील, लो एनर्जी इमोशंस हार्म। लो एनर्जी मनफी जज्बात, अगर आप खौफ, गुस्सा, हसद या शर्मिंदगी को दबाएंगे तो ये तवानाई जिस्म में जमा होती जाती है, ये बाद में बनती है। जिस्मानी बीमारियां, ज़हनी अस्तराब, रिश्तों में तनाव, नींद और हार्मोन के मसाइल। हाई एनर्जी, जैसे ही आप मोहब्बत, शुक्रगुजारी, कबूलियत, सुकून जैसे जज्बात महसूस करते हैं, दिमाग के अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन खारिज होता है। दिल की धड़कन और सांस का निज़ाम मुतवाज़िन होता है। जिस्म खुद को हील करना शुरू कर देता है। अगली बार जब आपको गुस्सा, खौफ या हसद महसूस करें, उसे दबाने की बजाय महसूस करें। सांस लें, जिस्म पर गौर करें, कहाँ टाइटनेस है, कहाँ घबराहट है। बस उस जज्बाती तवानाई को खामोशी से बहने दें। इमोशन इज जस्ट एनर्जी इन मोशन। जज्बा सिर्फ हरकत करती हुई तवानाई है। जब हम जज्बात को दबाते हैं तो तवानाई बंद हो जाती है। जब हम उन्हें जाहिर करते हैं तो वो फैलती है, और जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, तो वो आज़ाद होकर ख़त्म हो जाती हैं। यही हीलिंग का रास्ता है। दोस्तों याद रखें, हर जज्बा एक तवानाई है। ये तवानाई हमें ऊपर उठा सकती है या गिरा सकती है। उसे महसूस करें, मज़ामत ना करें और छोड़ दें। जितना आप मनफी तवानाई से आज़ाद होंगे उतना आप रोशन, पुरअमन और ताकतवर महसूस करेंगे। हीलिंग डजंट कम फ्रॉम फाइटिंग इमोशंस, इट कम्स फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू देम। ईगो विद हायर सेल्फ, ये जिंदगी की सबसे बड़ी अंदरूनी जंग है जो हर इंसान के अंदर रोज चलती रहती है। ईगो क्या है? अन्ना किसे बोलते हैं? ईगो वो शख्सियत है जो दुनिया को अलगपन, सेपरेशन से देखती है।
जो खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर समझती है, जो खौफ, हसद, गुस्सा को कंट्रोल और बचाव से काम लेती है, जो हमेशा अपने मफाद, अपनी शनाख्त और अपनी अजमत चाहती है। ईगो कहती है मैं ये हूँ, मेरी कामयाबियाँ, मेरा जिस्म, मेरी इज्जत, मेरी चीज़ें। ईगो हमेशा कहती है मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत, मुझे साबित करना है कि मैं कुछ हूँ, अगर ये चीज़ मिली तो खुश रहूँगा, दूसरे क्या सोचेंगे। ईगो की निशानियाँ: मुसलसल खौफ और फिक्र, दूसरों से हसद, कंट्रोल की तलब, तनकीद या गुस्सा, कमतर या बरतर महसूस करना, अंदरूनी बेसुकून। हायर सेल्फ वो खास रूह है जो मोहब्बत, सच्चाई, आजिज़ी, अमन और कबूलियत पर कायम है, जो हर एक को एक जैसा देखती है, जो खुद को खुदा की मखलूक और ज़िंदगी का हिस्सा मानती है, जो अंदर से कहती है मैं काफ़ी हूँ, मैं मुकम्मल हूँ, मैं मोहब्बत हूँ। हायर सेल्फ खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं, अंदर से सुकून और एतमाद, हर चीज़ के साथ रहने की रजामंदी। द हायर सेल्फ डज नॉट रिएक्ट, इट रिस्पॉन्ड्स विद अवेयरनेस। आपको किसी ने तनकीद की, ईगो कहेगा उसने मेरी बेइज्जती की, मैं बदला लूंगा। लेकिन हायर सेल्फ कहेगा ये उसका नजरिया है, मैं अपने कदर को जानता हूँ। जिंदगी का असल सफर ईगो से निकलकर हायर सेल्फ की तरफ जाना है। गुस्से की बजाय माफी, हसद की बजाय शुक्रगुजारी, खौफ की बजाय भरोसा, कंट्रोल की बजाय सपुर्दगी। द ईगो शाउट्स, द हायर सेल्फ विस्पर्स। अन्ना चीखती है, आला आहिस्तगी से सरगोशी करती है। ईगो और लेटिंग गो। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं जब हम छोड़ना सीखते हैं, हम ईगो को कमज़ोर करते हैं, अपनी रूह को आज़ाद करते हैं। यानी जितना हम जज्बात, खौफ, मुकाबला, दुख छोड़ते जाते हैं, उतना हम ईगो से दूर हायर सेल्फ के करीब होते जाते हैं। ईगो को कैसे पिघलाएं? खामोशी में वक्त गुजारें, जज्बात को दबाने की बजाय छोड़ें, अपनी रूह से जुड़ने वाली चीज़ें करें, जैसे मोहब्बत, खिदमत, दुआ, शुक्रगुजारी। किसी से बेहतर या कमतर न समझें। हर दिन खुद से सवाल करें, क्या ये फैसला मेरी अना से आ रहा है या मेरे अंदर की सच्चाई से? ईगो कहती है मैं कुछ बनना चाहता हूँ, हायर सेल्फ कहती है मैं पहले ही मुकम्मल हूँ। ईगो हमें दुनिया की तरफ खींचती है, हायर सेल्फ हमें अंदर की तरफ बुलाती है। और लेटिंग गो वो पुल है जो हमें इस सफ़र में मदद देता है। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की किताब लेटिंग गो में मुख्तलिफ मनफी जज्बात, नेगेटिव इमोशंस को तफसील से बयान किया गया है कि ये जज्बात हमारी ज़िंदगी, जिस्म, जहन और रूह को कैसे मुतासर करते हैं और हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। नीचे अहम जज्बात और उनको छोड़ने के सीधे, आसान और रूहानी तरीके बयान किए गए। नंबर 1, फियर। बेचैनी, डर, घबराहट, फैसला करने में दुश्वारी, नाकामी का डर, जिस्म में कपकपी, दिल की धड़कन तेज। खुद से कहें मैं इस खौफ को महसूस कर रहा हूँ, मैं इसे कबूल करता हूँ। उसके खिलाफ मज़ामत मत करें, न उससे भागें, न उसे दबाएं। सिर्फ आंखें बंद करें, दिल की धड़कन और जिस्म में तब्दीलियों को महसूस करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल में कहें मैं इस खौफ को जाने दे रहा हूँ। फियर इज जस्ट एनर्जी, व्हेन यू स्टॉप फीडिंग इट, इट फेड्स। गुस्सा, झगड़े, रद्द अमल, दुश्मनी, जिस्मानी तनाव, बुलंद ब्लड प्रेशर, ताल्लुकात खराब, अंदरूनी बेसुकून। छोड़ने का तरीका: गुस्से को दबाने की बजाय महसूस करें, उसे बगैर रद्द अमल के कबूल करें। ये ना सोचें मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बस उस जज्बे को देखें, फिर खामोशी से कहें मैं गुस्से को छोड़ रहा हूँ, मुझे सुकून अजीज है। एंगर इज अ मास्क ऑफ फॉर डीपर हर्ट, लेट द हर्ट सरफेस एंड इट विल डिसॉल्व। जेलेसी, हसद, हसद की वजह से दिल में जलना, दूसरों को बुरा महसूस करना, खुद को कमतर समझना, खुशी छीन जाना, ये सारे असरात होते हैं। हसद को हम छोड़ सकते हैं। मानिए मैं हसद महसूस कर रहा हूँ, उस एहसास को दिल में लाएं, उस पर शर्मिंदा ना हो, खुद से कहें ये जज्बा हकीकत नहीं, मैं मुकम्मल हूँ, मैं इस हसद को जाने दे रहा हूँ। रोज शुक्रगुजारी की मशक करें। रिमेंबर, जेलिसी डिसॉल्व्स व्हेन यू रिमेंबर देयर सक्सेस डजंट लिसन योर्स। दुख और अफसोस, दुख के असरात हैं उदासी, तन्हाई, रोना, जिंदगी बेरंग लगती है, मादी की यादों में उलझ जाना। हम कैसे छोड़ सकते हैं? अपने गम को मुकम्मल महसूस करें, रोएं, दिल हल्का करें, ये हीलिंग का हिस्सा है।
मादी को दोबारा जिंदा न करें, बल्कि उसे एहतराम के साथ जाने दें। दिल में कहें मैं दुख को महसूस कर रहा हूँ और मैं उससे मोहब्बत के साथ छोड़ रहा हूँ। Remember, you don't let go of grief with force, you let go with love. शर्मिंदगी उसकी असर है खुद से नफरत, एहसास जुर्म, खुद एतमादी की शदीद कमी, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ का एहसास। इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? खुद को माफ करना सीखें, खुद से कहें मैं इंसान हूँ, मैंने गलती की मगर मैं गुनाह नहीं हूँ। शर्मिंदगी को रूहानी आंख से देखें, ये एक पुराना जख्म है, उससे रोशनी में लाएं और कहें मैं अपनी ज़ात को कबूल करता हूँ, मैं शर्मिंदगी छोड़ रहा हूँ। Shame dies when it is spoken and faced with compassion. ये है डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की किताब लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर। आखिर में डॉक्टर हॉकिंस हमें जिंदगी की सबसे अहम सच्चाई से रोशनास करवाते हैं। सुकून, खुशी और रूहानी ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, हमारी अपनी अंदरूनी कैफियत में छुपी होती है। हम पूरी जिंदगी लोगों, चीज़ों, हालात को बदलने की कोशिश में गुजार देते हैं, मगर असल तब्दीली तब आती है जब हम अंदर के जज्बात, गुस्से, खौफ, दुख और अना को छोड़ना सीख लेते हैं। लेटिंग गो हमें हर जज्बे को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है, हर मसले को समझने या लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना है, उसे महसूस करो, कबूल करो और छोड़ दो। छोड़ने का अमल हमें कहाँ ले जाता है? हमें खौफ से एतमादी की तरफ, हमें गुस्से से अमन की तरफ, हमें हसरत से मोहब्बत की तरफ, हमें खुद नफरत से खुद शरासी की तरफ और अना से रूहानी बेदारी की तरफ। हर वो चीज़ जिसे हम छोड़ते हैं, हम उससे बेहतर चीज़ की तरफ ले जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें सुकून तब मिलता है जब हम मज़ामत छोड़ देते हैं, मोहब्बत तब आती है जब हम नफरत छोड़ देते हैं, ताकत तब पैदा होता है जब हम कंट्रोल की तलब छोड़ देते हैं। डॉक्टर हॉकिंस लिखते हैं जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी ख्वाहिशें, अपने गुस्से, अपनी तकलीफ़ें, तो आखिर में सिर्फ मोहब्बत, अमन और रोशनी बाकी रह जाती हैं। लेटिंग गो सिर्फ एक जज्बाती टेक्निक नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है। ये रास्ता कहता है जो है उसे कबूल करो, जो गुजर चुका है उसे जाने दो, जो तुम हो उसे पहचानो। और जब ये हम सीख जाते हैं तब हमें बाहर की दुनिया की नहीं, अपने अंदर ही जन्नत मिल जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्यारों, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और ज़िंदगी की जो भी परेशानियां हैं उन्हें लेट गो करने का अमल सीख सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।